and all. Once again, I'm pleased to be with you all on the platform of the state level on Zoom, online Zoom class conducted by the Mahanagar Mumbai Palika Shikshan Vibhag. There are no words to describe the efforts put in by Mr. Iqbal Rahmatullah Sir, BO of Aided Urdu Primary Section, and Mr. Mahesh Palkar Sir, EO, and last but not the least, Mr. Javed Maqsood, the CNO cum expert teacher. We have a good news for all of us. Hence, on behalf of the teachers, students, parents, and the administrative department of the Institution of Muslim Minority Community, and especially Anjuman Islam's Mumbai, I, Mrs. Sayyida Zinat Rukhsana Rashid from Anjuman Islam Khalifa Ziauddin Girls Primary School, Mahim, would like to congratulate Dr. Zahir Qazi, President of Anjuman Islam, Mumbai, for getting the honor of the Excellency Award of Sir Syed Ahmad Khan from the Aligarh University for the year 2020. Myself, Mrs. Sayyida Zinat Rukhsana from Anjuman Islam Khalifa Ziauddin Girls Primary School, Mahim, would like to begin with today's live session with the subject English Grammar for Standard 4. And my topic for today is articles a, and the. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Let us recite the dua for gaining knowledge. Rabbi zidni ilma. Ay Allah, mere ilm mein izafa farma. Meaning, O my Lord, increase in my knowledge. The start for a new day should always begin with a good thought in one's mind. So today, thought for the day is education is power. Knowledge is wealth. This is the thought for the day. Now, before we begin, I would like to ask all of you that how many alphabets are there in English language? Let me know how many alphabets are there in English language. Can any one of you tell me how many are there? 2, 10, 12, 26, 20. How many alphabets are there in English language? Can any one of you tell me? Altogether, how many alphabets are there in English language? You can raise your hands or you can write in the chat box. Can you tell me? Okay, there are 26 alphabets in all.
there are 26 alphabets in all. That is from A, B, C, D till Z. We have 26. यानी इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स है. ओके, now these 26 alphabets are divided into two parts. ये जो 26 alphabets है इंग्लिश लैंग्वेज के, ये दो हिस्सों में डिवाइड है. अंडरस्टूड ना? इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं into two parts. The first one is consonants. Consonants. The first part is called as consonants. This part is made up of, or it consists 21 alphabets. ये consonants में इंग्लिश के कितने alphabets है? 21. यानी 21 alphabet है. That is B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. All together, they are 21 in number. 21 यानी 21 कॉन्सोनेंट्स में. एंड द सेकंड, दूसरा हिस्सा जो है वो वॉवल्स का है. इट इज वॉवल्स. नाउ these vowels are 5 in number. Vowels are 5 in number. A, E, I, O, U. ये कितने हैं? 5 है. तो टोटल कितने हो गए अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में? 26. 21 plus 5, 26. क्लियर टू एवरीबॉडी? ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के 2 डिफरेंट पार्ट्स में जो डिवाइड होते हैं, one is consonants and the other is vowel. Is this very clear to all of you? Okay. Now we move on to a short story. I will explain you the articles in a short story manner, that is a and the, by narrating a short story of 3 brothers. We will get to know about articles. Now, article brothers are 3 in number. The first one's name is article A. The second one's name is article an. Brother article A, brother article an, and brother article the. These are the 3 article brothers in the story, which will help you in understanding the topic articles. Okay. Now, let us have a look at article A and an. Now, article A and an are twin brothers. ये क्या है? Twin brothers. But because it is not because they are identical or they look same, but because they do the same things or they play with the same things. That is article A and an. They play with one animal, one person, one place, or one thing. That is why they are called as twin brothers. Okay. Now we will move on with the example for article A. Now brother article A, brother article A है ये. He likes to play with consonants. ब्रदर आर्टिकल ए को कॉन्सोनेंट्स के साथ में खेलना बहुत पसंद है. Now you have already learned in the previous slide I showed you what are consonants, and you can see on the screen also that B, C, D, F, all these are consonants. The 21 alphabets are consonants. So now example, a bus. I have written an example on the screen. So bus. What is the spelling of bus? B-U-S. Bus.
Now the first alphabet of the word bus. बस हुर्फ का पहला अल्फाबेट, what is it? पहला अल्फाबेट what is it? It is B. क्या है? B. अब ये वर्ड, ये अल्फाबेट B, yet you can see that it is there in the consonant group. consonant के ग्रुप में है ना? फर्स्ट अल्फाबेट ही दिख रहा है, कॉन्सोनेंट के अंडर में लिखा हुआ बी. तो क्या आर्टिकल लिखेंगे आप? विच आर्टिकल यू विल राइट बिफोर द वर्ड बस? कौन सा आर्टिकल लिखेंगे बिफोर द वर्ड बस? आप लिखेंगे ए. वाई? क्यों लिखेंगे? बिकॉज बस स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट बी. पहला अल्फाबेट हमको देखना है. वी हैव टू सी टू द फर्स्ट अल्फाबेट. If that alphabet is there in consonants group, then you will write the article A. Second example is cow. C-O-W, cow. The first alphabet is C. C is there, consonant group में C है? Yes, C is there in consonant group. So which article will come before the word cow? A. Now another example, girl. girl किससे आता है? फर्स्ट अल्फाबेट क्या है गर्ल का? G-I-R-L. यू हैव टू स्पेल, स्पेलिंग बोलनी है आपको गर्ल वर्ड की. तो पहला वर्ड अल्फाबेट क्या है? G. तो that alphabet G is there in the group of consonants or no? वो हमको देखना है. If it is there in the group of consonants, then you will write the article A. ठीक है? सेम वे zoo, Z-O-O, zoo. तो द फर्स्ट अल्फाबेट इज Z. तो आर्टिकल क्या आएगा? A आएगा. Isn't it? आर्टिकल क्या आएगा? A आएगा. ओके. नाउ द सेकेंड आर्टिकल ब्रदर का नाम क्या है? An. सेकेंड ब्रदर आर्टिकल का नाम क्या है? An. अब ये ब्रदर आर्टिकल An को शौक किसका है खेलने का? किसके साथ खेलने का शौक है? विथ vowels sound. He likes to play with vowels sound. Now I told you previously that vowels are 5 in number. A, E, I, O. एग्जाम्पल देखेंगे, वर्ड एग्जाम्पल देखेंगे हम. डैश अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को हम जब बोलते हैं तो फर्स्ट आवाज क्या आती है? किस चीज की आवाज आती है? यानी यू की आवाज आती है. और स्पेलिंग क्या है वर्ड अम्ब्रेला की? यू, M-B-R-E-L-L-A. So you have to see the first alphabet besides the sound also. So the first alphabet is U. What will you write? An. The article an. Before umbrella आपको कौन सा आर्टिकल लिखना है? A and an. Second example is orange. O-R-A-N-G-E. Orange. Now the orange, when you pronounce the word, जब आप बोलेंगे orange बोलकर, तो आवाज प्रोनाउंसिएशन तलफुज जब बोलते हैं हम ऑरेंज, तो आवाज किसकी आती है? ओ की. तो हम ओ को देखेंगे whether it belongs to the group of vowels. तो ग्रुप ऑफ vowels में है ना ए, E-I-O-U, तो उसमें ओ है ना. जब ओ vowels में है तो आर्टिकल क्या लिखेंगे हम ऑरेंज के आगे बिफोर ऑरेंज? एंड. इंक बॉटल, इंक बॉटल. तो अब इंक की स्पेलिंग क्या है? INK. और आवाज क्या आ रही है जब हम प्रोनाउंस करेंगे, जब हम बोलेंगे इंक बॉटल, तलफुज में किस चीज की आवाज आ रही है? आई की. तो आई इज ए वॉवल. तो हम क्या लिखेंगे? आर्टिकल एन. अगर ये सिर्फ बॉटल होता, अगर इंक को हम हटा देते और सिर्फ बॉटल रहता, तो स्पेलिंग क्या होती? सिर्फ बॉटल की स्पेलिंग क्या होती? BOTTLE. तो बॉटल का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? B. तो दैट टाइम द आर्टिकल A लिखेंगे.
वाई? क्योंकि बी कॉन्सोनेंट के ग्रुप में आता है। अगर इंक बॉटल लेंगी तो आई फर्स्ट अल्फाबेट है और आई वॉवल के ग्रुप में आता है. दैट इज व्हाई यू विल राइट एंड बिफोर द वर्ड इंक बॉटल. Understood to all of you now about a and an. ब्रदर आर्टिकल ए और एन किसके साथ खेलना पसंद करते हैं? नाउ द एल्डेस्ट वन, द लास्ट और द थर्ड ब्रदर आर्टिकल द. इनका नाम क्या है? द है. तो द प्लेस विथ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स. द आर्टिकल किसके साथ खेलते हैं? स्पेसिफिक यानी स्पेशल या खास वर्ड्स के साथ में. उसके अलावा द ऑल्सो लाइक्स टू प्ले विथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स. जो वर्ड्स सिंगुलर होते हैं यानी वन, सिंगल में होते हैं वर्ड्स, और जो वर्ड्स प्लूरल में होते हैं यानी मोर देन वन, इन लोगों के साथ में भी खेलना आर्टिकल द को पसंद है. Now I have given you some examples. The sun. ये क्या एग्जाम्पल है? सन. सन एक चीज होती है ना? तो बिफोर दैट यू विल राइट द आर्टिकल द. ताजमहल. ताजमहल is also one, only one. So what will you write before Tajmahal? The article the. अब नेक्स्ट वन, द थर्ड एग्जाम्पल इज बुक्स. अब बुक्स एक बुक नहीं है, हमने एस ऐड किए हैं तो वो क्या हो गया? बहुत सारे बुक्स हो गए, बहुत सारे किताबें हो गई. तो वो क्या है? कौन सा फॉर्म है नाउन का? प्लूरल फॉर्म है. जब मैनी रहेंगे तो वो क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म. जब प्लूरल फॉर्म होता है नाउन का, वर्ड हमको प्लूरल फॉर्म में हम लिखते हैं, तो बिफोर दैट नाउन, बिफोर दैट पर्टिकुलर वर्ड वी विल राइट द आर्टिकल द. नाउ किड्स यानी एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं. हम छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? किड्स. तो ज्यादा है, एक से ज्यादा, मैनी, तो दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ किड. KID किड क्या है? ये सिंगल, सिंगुलर फॉर्म है. और प्लूरल क्या है? KIDS किड्स. तो बिफोर दैट यू विल राइट द आर्टिकल द. हम क्या आर्टिकल लिखेंगे? द लिखेंगे, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में है. I hope now everything is been very clear with this article the. Okay. Now articles a and the, ये आपको एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर मैंने समझा दी. ओके, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. क्लियर ना? नाउ वी मूव ऑन टू द एक्चुअल ग्रामेटिकल part of articles, like what are articles. You have to understand what are articles. What are articles? A and the. When these three words, a and the, when these three words come in grammar, then these three words are called as articles. Then these three words are called as articles. Is that very very clear to all of you? What are articles? अगर किसी ने आपसे पूछा what are articles, तो आप क्या बोलेंगे? A and the. These three things are called as articles. Okay. Now after that, how are they helpful to us? Understood? How are they helpful to us? Can you tell me how are they helpful to us? The articles a and the are used before nouns. How do they help us in a sentence? How do they help us in a sentence? They give or they add meaning to a sentence. अब आपको समझ में आया आर्टिकल्स हम किसको बोलते हैं? What are articles? जब एक वर्ड a और सेकेंड वर्ड and third
द, ये तीनों वर्ड्स अगर साथ में रहेंगे तो हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स. ना आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं? द आर्टिकल्स ए एंड द, ये कहाँ यूज होते हैं? बिफोर नाउन्स. बिफोर नाउन्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखे थे. बुक, बुक क्या है? एक कॉमन नाउन है. गर्ल क्या है? एक कॉमन नाउन है. इन द लास्ट लेसन मैंने नाउन्स पढ़ाई थी आपको, दो टाइप के, प्रॉपर और कॉमन नाउन. तो बिफोर द नाउन्स हम ये आर्टिकल लिखेंगे ए एंड द. ओके. आफ्टर दैट, articles add meaning to a sentence. How do they help us? कैसे वो हमारे काम आते हैं? आर्टिकल्स हमारे काम कैसे आते हैं? क्या काम में आते हैं आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में? They add meaning to a sentence or they give a meaning to a sentence. एक जुमला परफेक्ट हो जाता है जब हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं. Now let us see to article A. Like rule wise in grammar, what is the rule for using article A? There are some rules laid down. So let us have a look for the rule of article A. A is used before a word that begins with a consonant sound. A कब यूज करेंगे हम आर्टिकल A? उस वक्त यूज करेंगे जब वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट, उसकी आवाज या वो अल्फाबेट कंसोनेंट है. आपको पता है ना 21 कॉन्सोनेंट्स हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखे और पढ़े हैं. नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू ऑन द स्क्रीन इज गर्ल. अब गर्ल ये एग्जाम्पल है. ये एक गर्ल जब हम बोलते हैं ग की आवाज आती है, यानी जी की आवाज आती है, और जी कॉन्सोनेंट के ग्रुप में है. That is why we will write the consonant A. Now second thing is book. तो बू, B-O-O-K, book, ब की आवाज आती है. बुक, ब की आवाज, यानी B की आवाज. B is in the consonant group. तो you will write the article A. Similarly, rat, R, R की sound. It sounds R. So you will write the article A. Clear to all of you till here? Is it very, very clear? Now let us look at some examples of article A in sentences. Sentences में हम ये article A देखेंगे. Okay. Like for example, once there was a king. यानी king, कितने king है? एक, सिंगल है. तो is a person, king is a person. King सिंगल भी है and it sounds with the alphabet K, यानी K. It sounds with the alphabet K. So before writing, before the word king, you will write the article A, because king starts with K and K is in the consonant group. ये आपको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप, तो आप very easily you can work out with A and the. Second example is this is a pen. Pen ये सिंगल है, एक पेन है, तो एक ही है, वो एक सिंगुलर फॉर्म में है. और दूसरी चीज ये P जो है, दिस P प की आवाज आती है, यानी P की आवाज. That is why you will write the article A, because P comes under the group of consonants. Third example, it is a big school. School यानी जगह, बड़ी स्कूल है. Big, तो ब की आवाज, यानी B की आवाज. तो B belongs to the group of consonants. You will write A. Lastly, Moti is a pet dog. P is sounds with P. Then you will write the article P. Clear? We move on to article and. Now, what are the rules for article and? And is used before a word that begins with a vowel sound.
It also depends on the pronunciation of the word. Pronunciation of the word यानी हम जो word को हम pronunciation का meaning क्या है? तलफ़ुज़. Understood ना? हम किस तरीके से वो word को हम बोलते हैं तलफ़ुज़. Pronunciation means तलफ़ुज़. Now when you read ice cream, the sound of I comes out for when you read the word ice cream. When you read it, the sound I comes out and I is in the group of vowels. So before that you will write and. Now second example is elephant. Elephant. What does it sound? Which alphabet? E. The sound of E comes out. So you will write the article an, A-N, an. Now umbrella, is U, the sound of U. So you will write the article an. Besides this, one more thing that is in detail if you study, but because you are in fourth standard, I am not taking up in that deeply. There are words like R, HOURR, यानी घंटा, वक्त, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 hour, 2 hour. That spelling कैसे लिखते हैं हम? R की spelling HOUR. This is just for your knowledge. I have not given that example because then you have to look into it a bit deeper. So we will just say R यानी HOURR. ये R जब हम बोलते हैं तो हम H को साइलेंट करते हैं, हार नहीं बोलते हैं, आर बोलते हैं, यानी ओ की आवाज निकलती है. तो उसके आगे भी क्या लिखा जाएगा? विच आर्टिकल? एन. और एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको समझने के लिए. ऑनेस्ट यानी सच, ऑनेस्ट. तो हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे हम, वो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हम उस सुर को कैसे बोलेंगे? तलफ़ुज़ क्या है? हॉनेस्ट नहीं है, सही तलफ़ुज़ क्या है? ऑनेस्ट. यानी आवाज क्या आ रही है? ओ की आ रही है, मगर स्पेलिंग क्या है? HONEST. तो हम एच को साइलेंट रखेंगे, बोलेंगे नहीं पढ़ते वक्त. तो इसीलिए ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके आगे हम आर्टिकल एन ही लगाएंगे. ठीक है? दिस वाज अ बिट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. क्लियर? नाउ लुक एट द सेंटेंसेस. डू यू वांट dash orange? Orange starts with the alphabet O and it sounds also of the alphabet O. It gives the sound of the alphabet O. So the article and will come before the noun or before the word orange. Clear? It is a thing. It is a fruit. Okay. There is dash alligator in the lake. Alligator is a type of animal. That is why before the word alligator, the first alphabet is A. And when you pronounce the word alligator, you can hear the sound of A. Okay, the alphabet A you can hear. Isn't it? The sound of alphabet A की आवाज सुनाई देती है. That is why you will write an as A is a vowel. It comes under the group of vowels. Now, the third sentence given is Mary is dash engineer. Mary क्या है? Engineer है. तो engineer जब हम बोलेंगे when you read or when you pronounce, E की आवाज आएंगी. The alphabet of E. It sounds like the alphabet E. And E is again a vowel. है ना? AEIOU ये ग्रुप में E आता है. Then you will use the article an. AN. The last example is there is dash orphanage near my building. Orphanage किसको बोलते हैं? यतीम खाने को हम बोलेंगे orphanage. जिनके पेरेंट्स नहीं होते, मम्मी पापा नहीं होते, उनको हम एक घर में रखते हैं, उसको बोलेंगे orphanage इंग्लिश में. ओके, दैट वर्ड orphanage जब आप बोलेंगे तो orphan, the sound of alphabet O you can hear.
That is why you will write the article an. Clear to everybody? सबको clear है? Now the next thing, articles a and an are also used to introduce singular nouns. A और an किस चीज के लिए यूज करते हैं? Besides the one which I have explained to you, they are also used for singular nouns when there is only one thing. अगर एक चीज होगी तो हम, अगर वो स्टार्ट होगी वॉवल से या कंसोनेंट से, किसी से भी स्टार्ट हो, वॉवल से अगर स्टार्ट होगी या कंसोनेंट से स्टार्ट होगी, फिर भी हम ए और एन क्यों लगाते हैं? अगर वॉवल से स्टार्ट हुई हम एन लगा रहे हैं बिकॉज दे आर सिंगुलर. ओके, दैट इज ए स्टॉल. ना यहाँ स्टॉल क्या है? सिंगल है. तो आर्टिकल्स ए एंड एन आर ऑल्सो यूज to introduce singular nouns. Stall single है and orange is also a single fruit. S आ जाएगा, that is and oranges नहीं लिखेंगे हम, सिंगल है इसीलिए हम आर्टिकल and लिखेंगे. That is an orange. That is a stall. Okay, in singular. The sentences on the screen in the singular form. He is a boy. अब एक ही लड़का है बिकॉज सिंगुलर के आगे ही हम ए और एन आर्टिकल लगा सकते हैं. प्लूरल फॉर्म रहेगा, बॉयज रहेगा, ही इज ए बॉयज नहीं बोलेंगे, ही इज एन बॉयज नहीं बोलेंगे. अंडरस्टूड? दैट will become wrong. The sentence will become wrong. So the rule for article a and an is that these articles a and an कभी भी प्लूरल नाउन्स के आगे नहीं यूज करेंगे, सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के आगे यूज करेंगे. He is a boy, single boy. There is an old building. एक ही बिल्डिंग है और starts with the vowel and. An apple a day keeps the doctor away. एक एप्पल है और एक दिन. हम एक एप्पल एक दिन में खाएंगे तो डॉक्टर से दूर रहेंगे. इट इज द सेंटेंस किस में है? सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर एक ही फॉर्म में है. दिस इज ए हॉस्पिटल. हॉस्पिटल एक है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए. दिस इज ए हॉस्पिटल. हॉस्पिटल्स रहेंगे तो हम नहीं यूज करेंगे दिस इज ए हॉस्पिटल्स, ऐसे नहीं बोलेंगे. दिस इज एन हॉस्पिटल्स नहीं बोलेंगे. तो व्हाट इज द रूल ओवर हियर फॉर यूजिंग ए एंड एन आर्टिकल? दैट दे कैन बी ओनली यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन एंड नॉट बिफोर प्लूरल नाउन्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट आर्टिकल द. The is always used for a special or for a particular noun. एक खास चीज को जब हम बोलते हैं, किसी खास चीज के बारे में हम बात करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं. Example on the screen is given as that is dash car I want to buy. ये वही कार है जो मुझे खरीदनी है. मैं एक खास कार की तरफ इशारा करके या बताकर आपको बोल रही हूँ कि ये वही कार है जो मुझे खरीदनी है. तो ये स्पेशल कार है. दैट इज वाई आर्टिकल क्या आएगा? द. आर्टिकल क्या आएगा? द. फॉर स्पेशल और फॉर पर्टिकुलर और फॉर स्पेसिफिक नाउन्स. क्लियर? अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे. दिस इज द बुक आई वॉज रीडिंग. This is the book I was reading. तो ये आर्टिकल क्या है? बुक क्या है? ये वही बुक है जो मैं पढ़ रही थी. ये वही बुक है, यानी ये वो बुक नहीं है, समझे ना? ऐसी वैसी कोई भी बुक नहीं है, मगर ये वो खास बुक है जो मैं पढ़ रही थी. तो इसके लिए स्पेशल और स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बुक है. तो बिफोर दैट बुक क्या आएगा? आर्टिकल द. Third example is that is the boy who got first prize in the school. ये वही
लड़का है जिसको स्कूल में पहला इनाम मिला है। अंडरस्टूड ना? ये वही लड़का है। 10 लड़कों को फर्स्ट प्राइज नहीं मिल सकता है, एक ही खास लड़के को मिल सकता है। तो वो खास लड़का है ना, दैट इज वाई आर्टिकल क्या यूज करेंगे हम? द, THE, द। नाउ द लास्ट वन, दिस इज द कॉलेज आई स्टडी। ये वही कॉलेज है जिसमें मैंने पढ़ाई की हूँ। तो ये स्पेशल कॉलेज है मेरे लिए क्योंकि इसमें मैंने पढ़ाई की। तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे हम? द। क्लियर टू एवरीबडी? अच्छे से समझ में आ गया? उसके अलावा बिसाइड्स दैट द आर्टिकल के लिए और एक रूल है जो ए और एन के लिए क्या था कि ए एंड एन इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर नाउन। जब एक चीज होती है तो हम ए और एन यूज करते हैं। अब आर्टिकल द के लिए क्या है? मेनी, एक से ज्यादा चीजें हैं, या फिर मोर देन वन, हम उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल, प्लूरल नाउन्स। एग्जाम्पल, बाइसिकल। बाइसिकल यानी साइकिल जो होती है 2 पहिए की, उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बाइसिकल। अब ये एक नहीं है, ज्यादा है, 4 है, 5 है, तो क्या बोलेंगे? बाइसिकल्स। अल्फाबेट एस ऐड करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? विच आर्टिकल? द बाइसिकल्स। आर्टिकल क्या लिखेंगे? बाइसिकल्स के आगे द, क्योंकि वो प्लूरल में है। अगर हम एस हटा दिए, खाली बाइसिकल रहा, तो हम लिखेंगे ए बाइसिकल। ओके। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? टाइगर्स, यानी एक टाइगर नहीं है, कितने हैं? 6-7 है, तो एस है, प्लूरल फॉर्म है, मेनी टाइगर्स आर देयर। तो हम आर्टिकल क्या लिखेंगे? व्हाट विल वी राइट? द, THE, द। और अगर हम एस हटा दिए, टाइगर लिखे खाली, तो हम क्या लिखेंगे? ए। ओके। अब इसी चीज को हम सेंटेंस के फॉर्म में देखेंगे, थोड़ा सा सेंटेंस के फॉर्म में हम समझेंगे इसको। These are dash oranges, यानी many oranges, प्लूरल फॉर्म है। ऑरेंज का प्लूरल फॉर्म क्या है? oranges. So we will write the article the. बहुत सारे oranges है, we will write the article the. These are dash teachers of my school. ये वो टीचर्स हैं जो मेरे स्कूल में हैं, यानी टीचर्स यानी एक नहीं, 2, 4, 5, 6, 10। तो टीचर्स प्लूरल फॉर्म हो गया टीचर का। देन यू विल यूज द आर्टिकल द। गर्ल्स प्लेड वेरी वेल इन द मैच। गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियों ने अच्छा खेले मैच में, तो प्लूरल फॉर्म है, एस ऐड किए, तो हम क्या लिखेंगे गर्ल्स के आगे? आर्टिकल द। Here are dash आइसक्रीम्स you have ordered. ये वो आइसक्रीम्स है जो आपने ऑर्डर किए हैं, यानी आपने मैंगो टेस्ट की, चॉकलेट फ्लेवर की, वेनिला फ्लेवर की, 3-4 आइसक्रीम्स ऑर्डर किए हैं, एक नहीं 3-4। सो यू विल यूज द आर्टिकल द। क्लियर? समझ में आ गया बेटे? आपको सबको समझ में आ गया? अब इसका और एक रूल देख ले हम द आर्टिकल का। आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज व्हेन वी यूज द सेम नाउन सेकेंड टाइम। जब हम एक चीज को दोबारा लिखते हैं, जब हम एक चीज को दोबारा लिखते हैं, दोबारा से लिखते हैं, रिपीट करते हैं जुमले में, लाइक दैट इज ए स्टॉल, ये एक स्टॉल है, तो हम क्या लिखेंगे? ए, क्योंकि वो कोई भी स्टॉल हो सकता है, मगर उस स्टॉल को हम दोबारा से कुछ और लिखने चाह रहे हैं, उस स्टॉल के बारे में हम ज्यादा कुछ मालूमात देना चाह रहे हैं। देयर इज एन अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल, वो स्टॉल है जिसके ऊपर, ये वो स्टॉल है जिसके ऊपर छतरी है, तो हम क्या लिखेंगे? द लिखेंगे। स्टॉल के आगे क्या लिखेंगे? हम द लिखेंगे, क्योंकि वो दोबारा रिपीट हो रहा है, सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस।
दूसरा सेंटेंस देखो एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बेटा, इसके लिए मैं आपको सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. There was a crow. ये एक क्रो है, यानी कोई भी कौवा. अब उस क्रो के बारे में मैं मजीद आपको मालूमात दे रही हूँ. क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. ये वो कौवा है जो प्यासा है. अंडरस्टूड ना? जो प्यासा था ये वो कौवा है. तो आपको और गेट नॉलेज है. तो यू विल यूज द आर्टिकल द, क्योंकि क्रो जो नाउन है, कॉमन नाउन, वो सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है. दोबारा से हम लिख रहे हैं क्रो को 2 बार. ठीक है. देयर इज ए ड्रेस इन द शॉप. कोई भी ड्रेस हो सकता है शॉप में, मगर मैंने क्या लिखी यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में, वो ड्रेस जिसमें डायमंड्स टके हुए हैं. द ड्रेस हैज डायमंड्स ऑन इट. तो क्या हो गया, ये एक स्पेशल ड्रेस हो गया. और उस वो जो आम ड्रेस था उसको हमने खास कर दिया, क्योंकि हमने बोले कि ये वो ड्रेस है जिसमें डायमंड टके हुए हैं, यानी स्टोन्स टके हुए हैं. तो ड्रेस नाउन जो है वो सेकेंड टाइम, दूसरी बार रिपीट हो रहा है. तो व्हेन इट इज रिपीटिंग फॉर द सेकेंड टाइम, a noun when it is repeated for the second time, you will use the article the, the, the. Clear to everybody? All of you? Very clear? So now this was the basic. One more thing in this article the, और एक चीज है जो लास्ट में है over here on the screen, when one and only one exist. ये एक स्पेशल चीज है जो one and only one होती है, यानी यूनिक होती है, पूरी दुनिया में एक ही होती है. तो उसके लिए भी it is the same rule, because it is special, because it is a particular thing, a specific thing, and it is only one and only one. That is, it is unique. Then you will use or you will write the article the बोल के लिखेंगे. Understood now? Before the noun. Noun क्या है? अब फर्स्ट पिक्चर में sun. Sun is a noun. तो एक ही सूरज होता है, एक ही, 4-5 सूरज नहीं होते आसमान में. You will use the article the. Moon, एक ही चांद है, तो you will use the article the, the. डैश ताजमहल. ताजमहल पूरे दुनिया में एक ही है, isn't it? It is one of the 7 wonders of the world, isn't it? So it is only one ताजमहल. जो आगरा में है वो एक ही ताजमहल है, पूरी दुनिया में, सारी पूरी दुनिया में एक ही है. तो before that word Taj Mahal, before the noun Taj Mahal, proper noun है Taj Mahal, before that you will write the article the. This was all about the articles a and the. Now in sentences, a little bit we will see to the sentences which are one and only one, which exist in one and only one. So the first sentence is dash Taj Mahal is in Agra. I previously told you that Taj Mahal is only one, so you will write the article the. Second sentence, Narendra Modi is dash Prime Minister of India. 10 नरेंद्र मोदी नहीं है, एक ही नरेंद्र मोदी है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है. नाम के 10 होंगे, मगर जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही नरेंद्र मोदी है ना? तो वो एक ही नरेंद्र मोदी है जो प्राइम मिनिस्टर है, not 2, 3, 4. So when it is only one and only one, then you will write the article the. Dash sun sets in the west. सूरज मगरिब में डूबता है. तो सूरज कितने हैं? Only one. वो कहाँ डूब रहा है? मगरिब में. Which article you will write? The. I hope it is very very clear. अब समझ में आ गया सबको? Of course, this topic was a bit difficult, but then too I tried to explain it to you in the best of what I could. So now, very quickly,
you can fill in the blanks by filling the article a and the correctly in the dash. Okay, fill in the correct articles a and the. आपके चैट बॉक्स में आप लिखो फर्स्ट का आंसर क्या है, या आप रेज हैंड्स करो और उसका आंसर बोलो. फर्स्ट डैश कैट, विच आर्टिकल विल बी यूज? ए एंड द. कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे? कैट के आगे, कैट के आगे अल्फाबेट सी है तो A cat. वेरी गुड वेरी गुड. डैश डैश मून, डैश मून. तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? A moon. कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे हम? A moon. द मून यूज करेंगे बेटे. The moon. द मून यूज करेंगे. मैंने एक्सप्लेन की थी आपको कि मून एक होता है, 10 मून नहीं है. तो नो प्रॉब्लम, इफ यू आर रॉन्ग आई एम करेक्ट, आई करेक्ट यू, आई एम हियर टू करेक्ट यू. हम इसीलिए ये शॉर्ट रिवीजन ले रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में. मून यानी एक होता है तो दो डालेंगे. एन एप्पल, वेरी गुड. अब डैश रेड फोर्ट के आगे क्या यूज करेंगे? डैश. वेरी गुड The red वेरी fort. गुड वेरी गुड, क्योंकि लाल किला एक ही है. डैश गर्ल, गर्ल के आगे Eagle. शाबाश. Eagle. चलो वेरी गुड. कुछ तो समझ में आया, को कैसे बोलेगा? कुछ तो समझ में आया. अब सेंटेंसेस देखो, मेरे को टीचर. सेंटेंसेस देखो. कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल्स. अब ये सेंटेंसेस में कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एंड या द? गौर से सुनो और पढ़ो, स्क्रीन पे है. फर्स्ट क्या है? डैश एलिफेंट. ई की आवाज लिव्स इन द जंगल. तो कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आएगा, एन आएगा. ए टीचर. कौन सा आर्टिकल आएगा? ए. ए आएगा. रॉन्ग है, ए नहीं आएगा. आवाज क्या आ रही है? एलिफेंट की आवाज का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट की आवाज क्या है? Elephant. एलिफेंट. फर्स्ट Elephant. आवाज क्या है? एलिफेंट. और एलिफेंट किससे स्टार्ट होता है? E से. ई की आवाज से. और ई कौन से ग्रुप में आता है? Vowel. वेरी गुड वेरी गुड. चलो कम से कम एक दो बच्चों ने तो एन एलिफेंट लिव्स An elephant. Jungle. lives in the jungle. आर्टिकल क्या आएगा? ए एन एन. ओके. अब सेकेंड वन देखो. सन राइजेस इन द मॉर्निंग. सुबह में उगता है, निकलता A है. sunrise in the morning. ए सन राइजेस इन द मॉर्निंग आएगा. एक Sunrise in the morning. स्पेशल है, सूरज हमारा स्पेशल है. तो क्या आएगा? क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा कि द आएगा बेटे? द आएगा. द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, क्योंकि सूरज एक होता है आसमान में, वो एक खास चीज है आसमान में. आर्टिकल द लिखेंगे, THE द. थर्ड सेंटेंस क्या है? दिस इज डैश बुक. कोई भी बुक है और किससे स्टार्ट होती है? बुक. कौन सी आवाज आ रही है? बी की, ब की. तो हम क्या लिखेंगे? आर्टिकल क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे? क्या आर्टिकल लिखेंगे बुक के आगे? बुक के आगे क्या लिखेंगे हम? आर्टिकल ए लिखेंगे. ए आर्टिकल लिखेंगे. ओके, ठीक है. ऑल ऑफ यू आ गए समझ में? आप Yes, miss. बॉक्स में आंसर दिए हैं कि नहीं दिए हैं बच्चों ने? Yes, miss. Okay. Some students have answered in the chat box correctly. So I really appreciate
those students, and I also This is a happy that book. you have understood to some extent. But again, when you read it once and you again understand on your own, you will surely understand the articles a and the. It was a little bit difficult topic, but then it is there in your portion for fourth standard. That is why I have tried to take up this topic. So now the last and the concluding part, the last and the concluding part of my session is assignment. That is your homework. You can take a screenshot of all the 10 sentences given on the screen. You have to fill in the correct article a and the. ये 10 sentences दिए हुए हैं. All that you have to take a screenshot and write the answers on a sheet and send it to your respective class teachers or your English teachers of your own schools in your WhatsApp group. Is it very, very clear to you? The first sentence is dash eagle, second dash dog, third dash bat, fourth one is dash owl, fifth one is dash gateway of India. Sixth is a sentence, dash Red Fort is in Delhi. The seventh sentence is, I want dash ice cream. Sorry, she is dash good girl. And the eighth one is, I want dash ice cream. Ninth, I saw dash ostrich in the zoo. The last one is, there is dash bird. Dash bird is brown and white in color. So, बच्चों, try to recollect what I have explained to you. वापस से आप सोचो कि टीचर ने आज क्या पढ़ाए हैं और समझने की कोशिश करो तो आपको आर्टिकल्स ए एंड और द ये फिलअप करने के लिए, ये असाइनमेंट करने के लिए इजी होगा. वॉवल्स और कंसोनेंट्स को याद रखो और एक्स्ट्रा 2-3 रूल्स जो हैं सिंगुलर के, प्लूरल के और ओनली वन एंड ओनली वन के आगे which आर्टिकल हम लिखते हैं, that will make it easy for you to understand with this topic. Okay? Clear to all of you? Now, before I leave the meeting, let me convey to you an hadith said by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. See to it that you, whenever you listen to these hadiths, try to put into practice. Understood? In your day-to-day life. Speak a good word or remain silent. कोई अच्छी बात बोलो. अगर अच्छी बात नहीं बोल सकते हैं हम तो हमको खामोश रहना बेहतर है. Understood? So see to it that you practice this in your day-to-day life. This will make you a very good person in your future. Okay? After this was my last lesson for today, for before the Diwali vacations. In the month of October, I have taken 3 lessons and this was my last lesson. So I wish you all a very happy holiday and a very happy vacations for all of you. See that you take care of yourself. Understood? And be safe. Allah Hafiz. Thank you all for cooperating and coordinating me in this live session. Thank you, sir. Assalamualaikum, teacher. I hope you